السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے نالجیبل ویڈیو شب ابی طالب اور واقعہ معراج کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ دوستوں ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا۔ شب ابی طالب شب ابی 3 طالب سال تک مکہ کے باہر ایک تنگ وادی میں بچوں کی بھوک سے نکلتی 3 چیخیں سال گونجتی رہیں۔ تک مکہ کے ماؤں اندر کی آنکھوں میں آنسو سوکھ گئے۔ 3 سال تک شب ابی طالب کا جو معاہدہ تھا دوستوں، کعبہ کے اندر لٹکا ہوا ایک کاغذ قریش کی ساری سازش کو کھا گیا۔ قریش کی اور 3 تمام سال کا سازش محاصرہ اسی ایک ہی دن میں کاغذ ختم کے اندر ہو تھا گیا۔ دوستوں۔ محمد کے خلاف ہماری ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں وہ دوستوں ایک خدا کی بات کرتا ہے کیا اور کہہ رہا سب ہے؟ ہو جاتا ہے، اور ہمارے محمد کے 360 خلاف خدا ہمارے سارے سازشیں صرف ناکام بتوں ہو کی طرح گئے۔ کھڑے رہتے ہیں۔ شاید تمہیں 100 اونٹوں کی اور قربانی دینی ہوگی۔ کیا بول رہا ہے؟ شاید تمہیں 100 اونٹوں کی اور قربانی دینی ہوگی۔ بلال، کیسا لگتا ہے آزاد ہو کر؟ آزادی اس لباس کا نام نہیں ہے۔ دیکھو دوستوں کیا بول رہا ہے حضرت بلال علیہ السلام۔ جب تمہارا ایمان ان مٹی کے پتلوں کو توڑ کر ایک اللہ کی کیا عبادت کہہ رہا ہے؟ کی جب طرف تمہارا ایمان ان مٹی مگر کے امتحان بتوں ابھی کو ختم نہیں توڑ ہوا کر، تھا۔ اصل میں یہ ایک نئی آزمائش کی شروعات لیکن تھی، امتحان بھی ابھی ختم کیونکہ نہیں ہوا تھا دکھ کا دوستوں۔ وہ سال قریب آ ایک چکا بہت بڑا امتحان جسے آنے والا تاریخ ہے آگے، عام الحزن کے نام سے یاد کرے گی۔ جو تاریخ کا واقعہ ہے اس کو تاریخ عام الحزن کے واقعہ سے اللہ سے ان مشہور کی ہے۔ کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، اور پکارا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ بے شک صرف اللہ کی، جو واحد اور دیکھو سب پر دوستوں غالب کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آج صرف ہر جان بادشاہی کو اس کے عمل اس کا بدلہ رب کی دیا ہے۔ جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، بے شک آج اللہ کوئی انصاف ظلم نہیں ہوگا۔ دل گلوں تک آ جائیں گے، نہ دوست اور نہ ہی سفارش۔ جب ظلم فیصلہ کر لے تو قید بھی موت کا جب انتظار ظلم فیصلہ کر لے دوستوں تو قید بھی موت کا انتظار بن جاتے ہیں۔ ظلم جب حد سے گزر جاتے ہیں تو موت بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے دوستوں۔ میں نے ایسے چہرے کم دیکھے ہیں، اتنی کیا کہہ رہے ہیں سکون دوستوں کہ والی میں نے ایسے چہرے اور بہت اتنی کم دیکھے گہری ہیں ہمت۔ جو کہ اللہ اور اس کی رسول کی یہ ایک وہ فرما نہیں بردار اور جو ہم دیکھ رہے ایک ہیں، روب یہ حق کا وہ صفحہ ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ جو حق پر ہے اس کو حق پر ہی ہونا چاہیے۔ دوستوں لیکن ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو آپ لوگوں کے سمجھ میں آنے آپ کو والی ابو ہے طالب نے انشاءاللہ، بلایا ہے۔ کیونکہ ابو اس طالب ویڈیو میں واقعہ بنی معراج ہاشم بھی کے ہے، سردار، شب ابی طالب کا بھی قصہ ہے۔ وہ آدمی جس نے یہ بچپن ویڈیو سے بہت ہی محمد نالجیبل صلی ویڈیو اللہ بنائی علیہ گئی ہے وسلم دوستوں۔ کی حفاظت کی۔ اب بستر بیماری پر تھے۔ مکہ میں خبر پھیل گئی کہ ابو طالب مکہ میں زندگی کے خبر آخری پھیل گئی مرحلے دوستوں میں۔ کہ یہ حضرت خبر ابو قریش طالب کے سرداروں زندگی تک کے بھی پہنچ آخری گئی۔ مرحلے ابو میں جہل ہے۔ اور قریش کے چند بڑے سردار لیکن آپ فوراً لوگوں کو جمع ہوئے۔ ویڈیو جاننے کو ابو ملے گا طالب انشاءاللہ، وفات ویڈیو کے آخر قریب تک ہیں۔ دیکھیے گا۔ ہمیں اس کا فائدہ اٹھا کر آخری بات کر لینی چاہیے۔ قریش کا وفد ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ قریش کا جو وفد تھا وہ ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہوا قریش کے دوستوں۔ سردار اندر آئے اور ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے۔ دوستوں ابو طالب، تمہاری قدر ہم سب کرتے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو تمہارے بھتیجے نے ہمارے اور اس کے درمیان کتنا اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ دیکھو ہمیں اس دوستوں سے کوئی جنگ نہیں چاہیے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، آپ اور جو دیکھو تبلیغ دوستوں وہ لوگوں میں کر رہا ہے ایک کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں قریش کو کو ہمارے لگا بتوں کو برا کہ کہنا شاید چھوڑ ابو دے، طالب اپنے آخری ہم اس دنوں کے میں ہیں وہ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حل کروا دیں گے۔ لیکن پیارے نبی نے صرف محمد کو اللہ کا دعوت دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغام سوا بھیجا کوئی گیا۔ برحق معبود نہیں ہے۔ اور کچھ دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ ابو طالب نے رسول اللہ کی طرف دیکھا، پھر قریش کی طرف، اور کہا، بھتیجے، تمہاری قوم تم سے ایک بات چاہتی ہے اور بدلے میں تمہیں بھی ایک بات دینے کو تیار ہے۔
कुरैश के सरदारों को लग रहा था और बदले में तुम्हें आज भी शायद एक बात सब कुछ बदल जाएगा। लेने को तैयार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ने दोस्तों, कुरैश की प्यारे तरफ देखा। नबी ने कितनी कुर्बानियां दी। फिर पुरसुकून लहजे में फरमाया, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं जिसे कबूल कर लो तो तुम अरब के भी मालिक बन जाओगे और अजम भी तुम्हारे जेरे असर आ जाएगा। ये देखो सुनकर दोस्तों, मजलिस में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुरैश के सरदारों की आंखों में चमक आ गई। कुरैश की सिर्फ सरदारों एक बात के आंखों में रसूलुल्लाह चमक आ ने गई। कहा, दोस्तों जी हाँ, सिर्फ एक बात। अल्लाह की कसम, ऐसी 10 बातें भी होंगी तो मान लेंगे। कुरैश को लग रहा था कि बेशक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार कोई सिर्फ आखिरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने कहा, वसल्लम जी कोई हाँ, सियासत सिर्फ या एक कोई बात। बात है, लेकिन ऐसी अल्लाह कोई की बात नहीं थी कसम, दोस्तों। ऐसी सिर्फ 10 दावत बातें भी होंगी तो मान इल्लाह था। कुरैश को लग रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार कोई सियासी रास्ता पेश करने वाले हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहो लेकिन ला इलाहा प्यारे नबी ने फरमाया कि कहो ला खामोशी इलाहा छा गई। इल्लल्लाह, क्योंकि जो सिर्फ कलिमा एक है कलिमा। मुसलमानियत का वो लेकिन कहो। कुरैश के लिए लेकिन ये जो पूरी मक्का दुनिया के छोड़ जो देने कुरैश जैसा थे किसी ने भी क्या? नहीं माना एक माबूद और कोई भी मानने सब को तैयार माबूदों नहीं को था एक बना दिया। कि बात तमाम कबूल माबूदों को नहीं की जा एक बना सकती। दिया, यानी एक माबूद, हम अपने बाप यानी दादा एक का माबूद दीन को नहीं माने, छोड़ेंगे। बाकियों को छोड़े, बाप वो दादाओं गुस्से का में घर से माबूद चले गए। छोड़े। लेकिन प्यारे मोहम्मद नबी ने कहा कि सल्लल्लाहु कामयाबी अलैहि उसी में है वसल्लम जो एक अपनी माबूद में जगह से है। नहीं हिले, क्योंकि उनका मकसद समझौता नहीं था, हक पहुंचाना था। हजरत अबू तालिब की सांसें इनको धीमी होती गईं, कमरा और ज्यादा खामोश होता गया और फिर एक जिंदगी अपना सफर पूरा कर गई। अबू तालिब बेशक चले गए। शेब अबी तालिब जिसने चले गए बचपन से दोस्तों, मोहम्मद जिसने शेब अबी तालिब का सल्लल्लाहु वाकया अलैहि इसमें वसल्लम मौजूद की है, आप लोगों हिफाजत को की, बताएगा जिसने कि कुरैश किस के तरह सामने पूरी जिंदगी दीवार अपने बनकर भतीजे खड़ा हजरत हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज इस हिफाजत की दुनिया से दोस्तों। रुखसत हो चुके थे, लेकिन इस रुखसती के साथ मक्का का एक बड़ा सहारा टूट गया और अब दुश्मनी का दरवाजा पूरी तरह खुल गया था। और इसी अंधेरे के बीच एक और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, वो औरत जो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत ईमान खदीजा रजी अल्लाह ताला आप लोगों को जिसने पता अपना है माल, दोस्तों, अपनी जिंदगी और अपना हर सुकून इस दावत के लिए कुर्बान कर दिया। अब उनकी तबीयत कमजोर होती जा रही थी। घर की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। अब उनकी हर लम्हा तबीयत एक कमजोर अंदेशा था। होती जा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब बैठे और कहते, खदीजा, आपने मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी जिंदगी के हर ईमान को याद कर रही थी। वो दिन जब सब ने इनकार किया और उन्होंने यकीन किया, वो वक्त जब सब ने तन्हा छोड़ दिया और उन्होंने साथ दिया। फिर वो दिन जो सब ने इनकार किया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने प्यारे और नबी का दुनिया साथ एक दिया। अजीम रूह से खाली। वो दिन भी याद थे जो हजरत सब खदीजा एक तरफ रज़ी थे अल्लाह और अन्हा हजरत खदीजा इस एक तरफ दुनिया था। से रुखसत हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। बेशक और दोस्तों, एक ऐसे दर्द से गुजर रहा था जो सिर्फ अल्लाह जानता है। इस साल को अब और तारीख याद कोई नहीं रखिए। जानता है, सिर्फ माबूद आमुल बरहक आज़म। जानता है। गम का साल, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे करीबी 2 साथियों को खो दिया था। मक्का के दरवाजे बंद हो चुके थे। हर गली, हर मजलिस, हर कबीला हक को सुनने से अब इनकार देखो कर रहा दोस्तों, मक्का के तमाम दरवाजे बंद हो चुके थे। अरब के पहाड़ों के दरमियान एक शहर था, ताइफ। अपने बागातों अरब के पहाड़ों और के अपनी दरमियान ताकत एक की वजह शहर से था मशहूर दोस्तों, उस शहर का नाम था यहाँ ताइफ। सकीफ कबीला रहता था। प्यारे नबी अभी ताइफ के सफर के लिए रसूलुल्लाह रवाना सल्लल्लाहु होंगे अलैहि वसल्लम ने फैसला अपने कर उस लिया, गुलाम के साथ जो वफादार शायद और अल्लाह काबिल था। ताइफ के लोगों के दिल खोल दे। रसूलुल्लाह और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु मक्का से निकले
और पथरीले रास्तों पर चलना शुरू कर दिया। पहाड़, तेज धूप और लंबा सफर। देखो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ उनका इंतजार अरब की तारीख के सबसे दर्दनाक लम्हों में से एक कर रहा है। ताइफ पहुंचने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकीफ कबीले के सरदारों से मुलाकात का फैसला किया। ये सकीफ तीन भाई कबीले थे, के सरदार अब्द यलील जो बिन 3 अम्र, भाई थे दोस्तों। मसूद बिन अम्र, हबीब बिन अम्र। देखो रसूलुल्लाह दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। अल्लाह को अकेला मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो और मेरी मदद करो ताकि मैं अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकूं। ये अल्फाज सुनकर ये बहुत गहरे अल्फाज है दोस्तों, हर किसी के समझ में लेकिन नहीं फिर आते थे, क्योंकि जो एक बुत सरदार परस्त ने है मजाक उनको उड़ाया। कैसे समझ आएगा अल्लाह की दावत। अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और न मिला था। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारी बात का जवाब देना मेरे लिए देखो खतरनाक दोस्तों, है। कोई कहता है कि मैं और तुमसे अगर तुम बात ही नहीं अल्लाह पर करूंगा, झूठ बांध रहे हो यानी तो कुछ फिर बंदे तुमसे बात बात करना करने ही के लिए भी बेकार है। तैयार नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रहा। अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है। मजलिस में कह कहे गूंज उठे। ताइफ के सरदारों ने ना सिर्फ दावत ठुकरा दी बल्कि ताइफ उसका के मजाक सरदारों भी ने न सिर्फ दावत ठुकरा दी उन्होंने एक दोस्तों, ऐसा बल्कि फैसला किया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मिंदा हुई। पूरा उन्होंने शहर के जालिम, गुलामों जुल्म और पर उतर बच्चों आए। को जमा करना शुरू कर दिया और एक हुक्म दिया। कुछ देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो ताइफ से निकलकर वापस जा रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक हुजूम जमा हो चुका था और अब तारीख के सबसे दर्दनाक मंजरों में से एक शुरू होने वाला था। और फिर पहला पत्थर फेंका गया, देखो फिर दोस्तों, दूसरा, फिर तीसरा, फिर दर्जनों। हर तरफ चीखें, हर तरफ मजाक, हर तरफ नफरत। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन आगे आए देखो दोस्तों, और अपने जिस्म को ढाल बना दिया। इस शहर से निकल जाओ। रुक जाओ भाइयों, तुम लोग एक रसूल पर जुल्म कर रहे हो। देखो दोस्तों, लेकिन पत्थर हर तरफ से आ रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म जख्मी हो गया, खून बहने लगा। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु रिवायत में अलैहि आता है वसल्लम के दोस्तों, जूते नोट कीजिएगा। खून से भर गए। लेकिन इस सब के बावजूद ना बद्दुआ, ना इंतकाम, ना कुछ गुस्सा, भी नहीं सिर्फ दोस्तों, सब्र इन सब के और बावजूद अल्लाह पर ना कोई तवक्कुल। बदुआ, ना हुजूम इंतकाम, पत्थर कुछ मारता रहा। भी नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर से दूर निकलते गए। ताइफ की दीवारें पीछे रह गईं। थके हुए कदम, जख्मी जिस्म और गम से भरा हुआ दिल लेकर देखो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने जख्मों को साफ किया और फिर अल्लाह से दुआ की। ये बाग उतबा बिन रबिया और शैबा बिन रबिया का था। वो देखो दूर से दोस्तों, सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अपने नसरानी गुलाम को बुलाया। अद्दास, अंगूर का ये गुच्छा लो और उन दोनों को दे आओ। अद्दास हुक्म मानकर आगे बढ़े। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे और अंगूर पेश कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर उठाए और फरमाया, बिस्मिल्लाह। अद्दास रुक गए। उनकी आंखों में हैरानी उभर आई। ये अल्फाज बेशक इस शहर के लोग तो नहीं बोलते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा और नरमी से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं नीनवा से हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा, निनवा यानी एक नेक बंदे यूनुस बिन मत्ता के शहर से। बेशक आप यूनुस बिन मत्ता को कैसे जानते हो? अरब में तो कोई उनका जिक्र नहीं करता था। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जवाब दिया जिसने अद्दास के दिल का रुख बदल दिया। यूनुस बिन मत्ता मेरे भाई थे, वो भी अल्लाह के नबी थे।
और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। अद्दास बेशक। फौरन झुक गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ चूमने बेशक। लगे और रो पड़े। ताइफ के सरदारों ने ये मंजर देखा और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। देखो, इसने तुम्हारे गुलाम को भी खराब कर दिया। जब अद्दास वापस आए तो उन्होंने फौरन पूछा, अद्दास, तुम्हें क्या हो गया था? ज़मीन पर इस शख्स से बेहतर कोई नहीं है। ये वही बात जानते हैं जो सिर्फ एक नबी जान सकता है। ताइफ ने इनकार कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि जब पूरा शहर बंद हो जाए तब भी एक दिल का दरवाज़ा खुल सकता है। बेशक रसूलुल्लाह दोस्तों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। अचानक फ़िज़ा बदलने लगी। हवा में एक अजीब सी हैबत फैल गई। देखो दोस्तों, अब जिब्रील इंतजार की अलैहिस्सलाम घड़ी नाज़िल खत्म हो गए थे, क्योंकि और जिब्रील उन्होंने अलैहिस्सलाम फरमाया, नाजिल हो गए "ए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो दोस्तों, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुनी है और उनका रवैया भी देखा है। ये मलकुल जबाल है, पहाड़ों के फरिश्ते। अल्लाह ने ये आपके मलिकुल पास भेजा जवाल है, पहाड़ों ताकि के आपके फरिश्ते। हुक्म का इंतजार करें। फिर एक अजीम फरिश्ता सामने आया, मलकुल जबाल, जिसके इख्तियार में पहाड़ों का निज़ाम था। मलकुल जबाल ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखो दोस्तों, क्या कह रहा है ये फरिश्ता। तुम्हें इन दोनों ऐ अल्लाह के पहाड़ों को रसूल, मिलाकर अगर आप चाहे तो मैं दोनों पहाड़ों को मिलाकर रेजा रेजा कर दूंगा, ताकि ताइफ का खानदान ही खत्म हो जाए, सिर्फ एक ताइफ का नाम निशान ही खत्म हो जाए। दोस्तों, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाम लेने नहीं आए थे, रहमत बनकर आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्लों से ऐसे लोग प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिर्फ जवाब दिया। दोस्तों, मना किया प्यारे नबी ने। ये इंतकाम लेने का मौका था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को चुना। ये इंतकाम लेने का खत्म हो मौका चुके था, थे, लेकिन प्यारे लेकिन नबी ने सफर इंतकाम अभी नहीं लिया। खत्म नहीं दोस्तों, हुआ था। प्यारे नबी ने भरोसा इसी किया, सफर प्यारे के नबी दौरान ने रसूलुल्लाह अल्लाह पर सल्लल्लाहु भरोसा अलैहि किया, वसल्लम अल्लाह के नखला की निजाम पर वादी में भरोसा कयाम किया। फरमाते हैं। यहाँ न शहर था ना इंसान, सिर्फ रात और खामोश वादियाँ। ये इसी देख रात दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। बेशक उसी वक्त एक जिन्नों का गिरोह वहां से गुजर रहा था। जब उन्होंने कुरान सुना तो वो रुक गए। हर लफ्ज उनके दिल को एक छू रहा जिन्नों का गिरोह वहां से गुजर रहा था। दोस्तों, जिसका जिक्र कुरान लेकिन में भी प्यारे आता है। नबी ने कुरान जिन पढ़ा एक तो दूसरे से जिन कहने लगे, एक दूसरे ये से कलाम कहने लगे, इंसानी कलाम नहीं, बेशक ये तो सीधा अल्लाह की तरफ से है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो देखो अपनी दोस्तों, कौम तक इस हिदायत को पहुंचाएंगे। जिन भी हिदायत ले गए। दोस्तों, जिन्नों ने भी हिदायत ले गए प्यारे नबी का कलाम मक्का की सुनकर। तरफ रवाना हुए। लेकिन इंसान क्या कुरैश चीज ने है। हर तरफ अपने सिपाहियों को तैयार रखा था। मोहम्मद को मक्का में दाखिल ना होने देना, हर तरफ फैल जाओ। फिर एक शख्स खड़ा हुआ, मुतईम बिन अदी। मैं मोहम्मद को अपनी पनाह में लेता हूँ, वो मेरे साए में देखो मक्का दोस्तों, दाखिल होंगे। मुतईम ने अपने बेटों को तलवारें थमा दी और देखो। काबा के गिर्द जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए। पहले काबा का तवाफ किया, नमाज कायम की और फिर अपने घर रवाना हो गए। वक्त गुजरता रहा। पहले काबा का तवाफ किया, नबूवत का 11वां साल। फिर नमाज कायम आसमान की। अपने दरवाजे खोल देता है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और यहीं से एक अजीम सफर का आगाज होता है। अब देखो दोस्तों, वाकया मेराज शुरू होने वाला है। मुबारक सवारी दी गई। शैब अबी तालिब के बाद एक ऐसी ताइफ का सवारी सफर हो गया। जो ताइफ कदम के रखती सफर थी के बाद अब तो वाकया नजर के मेराज से शुरू आगे होने वाला है। निकल दोस्तों, अब वाकया मेराज सफर देखिए शुरू कि होता है। अल्लाह ताला किस मस्जिद तरह अल प्यारे हराम से नबी को अपने मुलाकात के लिए खत्म बुलाता है। होता दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा में वहाँ बेशक। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जमा थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम,
اور باقی انبیاء علیہم السلام سب کی امامت کا شرف اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور یہ آخری پیغام کی تصدیق تھی۔ نماز قائم کرنے کے بعد وہ سفر شروع ہونے والا تھا جو انسانی سوچ کو ہلا دے گا، اور نبی پاک کو وہ اعزاز دیا جائے گا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا، اور یہ سفر تھا الاسراء والمعراج۔ دیکھو دوستو، الاسراء والمعراج یہ وہی سفر تھا جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا سفر تھا دوستو۔ ہر آسمان پر ایک عظیم نبی سے ملاقات ہوتی ہے، ہر آسمان پر ایک عظیم نبی سے ملاقات، اور سدرۃ المنتہا وہاں پہنچ کر پھر آخری آسمان آئے گا، وہاں پہ سدرۃ المنتہا دوستو، ہر سوچ سدرۃ المنتہا آئے گا۔ پھر وہ مقام آتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ وہاں امت کے لیے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر یہ آسان ہوتا ہوتا 5 نمازوں تک آ گیا، لیکن ثواب 50 کا ہی رہا۔ یہ دیکھو اللہ دوستو، کی رحمت تھی اور امت کے لیے خوشخبری۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ سفر ایمان والوں کے لیے امتحان بن گیا۔ کچھ لوگ اس بات کو سمجھ نہ سکیں۔ آؤ سنو، آج محمد ایک نئی بات لے کر آئے ہیں۔ مگر حضرت اب ابو بکر دیکھو صدیق دوستو، رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اگر اللہ رسول تعالیٰ اللہ عنہ نے کہا ہے تو میں بے شک۔ اس پر یقین کرتا ہوں۔ دیکھو اسی وجہ سے انہیں حضرت صدیق ابو بکر کہا رضی گیا۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کہا کا ہے، اس ظلم نے اور انکار رکنے کہا والا کہ نہیں، اگر رسول اللہ نے بلکہ کہا ہے تو مجھے یقین ہے، نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ مگر شک اللہ شعبے کا کی ضرورت ہے۔ قریش کے منصوبے سے بے کرنا شک۔ پڑا تھا۔ دور یثرب کی سرزمین پر کچھ دل ہدایت کے انتظار میں تھے۔ بے شک، وہ شہر جو جلد ہی مدینہ النبی کے نام سے جانا جائے گا، بے شک اور دوستو، ایک ہجرت۔ مدینہ کا پہلا جو چاہتا ہے کہ نام اس کی ماں اسے یثرب تھا کھو دے، دوستو۔ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس بے کے شک۔ بچے یتیم ہو جائیں، وہ عمر بن خطاب کو روک کر دیکھ لے۔ اب دیکھو دوستو، عمر بن خطاب کا آخر کر ذکر میں آتا ہے، لیکن ویڈیو لیمیٹڈ تھا کیونکہ دل کہتا ہے ویڈیو پورا گھنٹہ چلے، لیکن ریئیکشن ویڈیو کا یہی انداز ہوتا ہے کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے مکمل واقعہ، پورا تفسیر۔ پہلے شیب ابی طالب تھا، پھر طائف کا سفر تھا پیارے نبی نے، پھر واقعہ معراج بھی آ گیا، پھر یثرب کی طرف پیارے نبی روانہ ہو گئے۔ دوستوں یہ ویڈیو بہت ہی ڈاکومنٹری ویڈیو بنائی ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ اور اچھے بہترین ڈاکومنٹری ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔